Hello my dear students. Today the topic of our discussion is chapter 12, that is cybercrime. So in this chapter the learning objectives we are going to discuss today: cybercrime, cyberspace, types of cybercrime, cyber safety, that is their importance, cyber safety importance, cyber ethics and laws. Okay, and there are different types of cyber crimes. So first we are going to discuss about a cyberspace. So all of you know that today internet is a very huge part of our lives. Without internet we can't do shopping, we can't do our e-banking, we can't play games online and everything, a lot of different tasks, even social networking, chatting, and now e-learning, that is the education which we got through with the help of internet. So due to its global reach and accessibility, it become a hotspot of one of the most advanced forms of online work, and it allows the users to become a hotspot for most advanced forms of crimes, that is the cybercrime. तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे that is cyberspace. The virtual world of computer networks and the information that is stored on the computers in this online network is called cyberspace. ऐसा स्पेस, ऐसा इन्वायरमेंट, एक नेटवर्क, वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और डिफरेंट डिवाइसेस से अराउंड हमारे जो हम घिरे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड अ साइबर स्पेस. साइबर मीन्स रिलेटेड टू अ वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर एंड स्पेस मीन्स द information and the network and the devices around us is called a cyberspace. So cyberspace allows users to share information, interact, swap ideas, play games. तो आजकल जितने भी काम होते हैं, play games and engage in discussion, conduct business and creating social media, interactive with the social media and among many other activities using the internet. So cybercrime. Now the cybercrime. In general, cybercrime may be defined as any unlawful act where computer or communication device or computer network is used to commit or facilitate the commission of crime. That means cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime or is used as a tool to commit a crime. So internet is a dangerous place because some tech-savvy individuals engage in various types of criminal activities online by abusing computer networks. होता ये है, इसमें साइबर क्राइम में कंप्यूटर वर्क करता है एज ए टूल और एज ए टारगेट. मींस आपका जो कंप्यूटर है उसके थ्रू हो सकता हो कोई साइबर क्रिमिनल उसकी निगाह आपके नेटवर्क पे हो, आपके डेटा पे हो, एंड ही और शी कैन स्टील योर इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर when you are using e-shopping, when you are doing e-banking, okay, or any online activity you are doing, and it is basically defined as a criminal activity that occurs over the internet. तो इंटरनेट जब यूज करते हैं हम, जब ऑनलाइन नेट यूज करते हैं तो कंप्यूटर एज ए टूल भी यूज होता है. मींस कंप्यूटर के थ्रू हम बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो कि साइबर क्राइम्स कहलाते हैं, और उन कंप्यूटर के थ्रू हम नेटवर्क के थ्रू किसी के भी नेटवर्क को हैक कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर से डेटा को डैमेज कर सकते हैं, उन्हें स्टील कर सकते हैं, मींस चुरा सकते हैं. और साइबर क्राइम कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड थेफ्ट है, जैसे किसी की बैंकिंग डिटेल्स या डेबिट या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन
को फेच करना, साइबर टेररिज्म। अभी हम आगे ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बुलिंग एंड स्टॉकिंग एंड हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, network intrusions, software piracy, these are all the types of cyber crimes that happen when you are online or by abusing computer networks. So ये जितने भी acts हैं, criminal acts, they are happen because when you share the information, interact with your friends, and when you are playing games and engage in discussion and create intuitive media among many other activities using the internet. So categories of cybercrime. So in the categories of cybercrime, cybercrimes are classified into mainly three types. That is using the network and the computers and the computing devices. The first type of cyber crime is against a person. किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट जब हम कोई क्राइम करते हैं या किसी पर्सन के अगेंस्ट हम क्राइम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए अगेंस्ट ए पर्सन. इट इज एग्जांपल ऑफ अगेंस्ट ए पर्सन. द क्राइम अगेंस्ट ए पर्सन इज cyber bullying, cyber stalking, etc. Next is the against properties. That is the identity theft and phishing are the examples of the crimes against properties. अभी हम आगे देखेंगे ये सारे crimes in detail. Crime targeting the government and organizations, other organizations or the institutions, means it is a crime that to transmit virus in the network and do hacking in the network and create rumors and fake news in the society against the government, against the institutions. Okay, so cyber crime is a crime where the computer is the target. तो कई जगह तो कंप्यूटर ही टारगेट होता है, मीन्स आपका डेटा, आपका जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो टारगेट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हैकिंग या वायरस अटैक्स के थ्रू या फिर हैकिंग के थ्रू कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है. अदरवाइज द कंप्यूटर इज यूज्ड एज अ वेपन, और कंप्यूटर एज ए टूल और एज ए वेपन भी यूज होता है, जिसमें हम क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो आपने जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर और कोई ऑनलाइन गेम्स प्ले करते हैं या फिर ऑनलाइन एक्टिविटी कुछ करते हैं, तो वहां से क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या फिर साइबर टेररिज्म को स्प्रेड करना. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स. So in this chapter we are going to discuss about the hacking. So first of all, what is hacking? Hacking is the act of breaking into a computer system and is a criminal offense under the computer misuse. Hacking एक टाइप का एक्टिविटी है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हम एक क्रिमिनल ऑफेंस एक्ट करते हैं और हम उसका कंप्यूटर का मिसयूज करते हैं और हम इसमें अनऑथराइज एक्सेस करते हैं किसी दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम में या फिर नेटवर्क में. मींस देयर इज अ इंट्रूजन इनटू अनदर कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, सो जनरली इट रिफर्स टू द अनऑथराइज इंट्रूजन इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम और ए नेटवर्क. द पर्सन एंगेज्ड इन हैकिंग एक्टिविटीज, और जो पर्सन इस हैकिंग एक्टिविटीज को करता है, दैट इज कॉल्ड ए हैकर. दिस हैकर may find and exploit the weakness in the computer system or security features to gain access. Okay, means किसी भी तरह वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या फिर हमारे नेटवर्क में इंटर कर जाता है और उसके थ्रू वो जो हमारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे वो हैक कर लेता है और हमारे सिक्योरिटी फीचर्स को फेल कर देता है. Some hackers do it for enjoyment. कुछ हैकर्स तो इसे एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, while other hack for stealing credit card details, क्रेडिट कार्ड या फिर बैंकिंग डिटेल्स ये निकालने के लिए, या फिर चेंजिंग और डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन, हमारी इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए. ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स टू देयर अकाउंट्स एंड सो ऑन, और अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में
मींस यूजर के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी ऐसा कई बार वो हैकिंग का यूज करते हैं. नाउ देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ द हैकर्स आल्सो. तो हैकर्स यानी कि जो हैकिंग करते हैं, दैट इज द हैकर्स. हैकर्स का क्लासिफिकेशंस हम 3 पार्ट में करते हैं. फर्स्ट इज द इथिकल हैकर, उसे हम व्हाइट हैट भी कहते हैं. देयर इज अ नेम गिवन टू द इथिकल हैकर्स कॉल्ड व्हाइट हैट. दैट इज a name given to the ethical hacker. A hacker who gains an unauthorized access to systems with a view to identify and fix the weakness. ये एक तरीके से good hackers होते हैं. They are the white hat hackers are the good guys of the hackers world. एक तरीके से ये good guys होते हैं जो कि authorized access करते हैं systems में टू व्यू टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स द वीकनेस. अगर आपके सिस्टम में कोई सिक्योरिटी इशू है या फिर कोई वीकनेस है तो वो इसे सॉर्ट आउट करके इसे ठीक करते हैं. एंड दे आर अपॉइंटेड बाय सॉफ्टवेयर कंपनीज, और मेनली इन्हें अपॉइंट करती हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज. जहां बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर की, वो इन्हें अपॉइंट करती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में. एंड दे आर द गुड गाइज, और इनका जो एक तरीके से ये गुड वर्क करते हैं और ये जो सिक्योरिटी में वीकनेस है या कोई प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में, तो उसे वो फिक्स करते हैं. नेक्स्ट इज द क्रैकर, दैट इज द ब्लैक हैट. जो नेक्स्ट टाइप है हैकर्स का, उनको हम कहते हैं क्रैकर. दैट इज द ब्लैक हैट, अ हैकर हु गेन्स एन अनऑथराइज्ड एक्सेस. तो जो अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं टू द सिस्टम्स फॉर पर्सनल गेन, they are called black hat. They intend to find the weakness in the security in banks to steal money or credit card information. ये क्या करते हैं, जहां सिक्योरिटी में जरा से भी वीकनेस हुई या फिर नेटवर्क में कहीं भी कोई वीकनेस हुई, ये बैंक्स के नेटवर्क में और इंट्रूजन कर जाते हैं और वहां से मनी या फिर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं. दे आर नोन एज क्रैकर्स. इनको हम क्रैकर्स कहते हैं और इनको एक नेम दिया गया है ब्लैक हैट. एंड द लास्ट कैटेगरी इज द ग्रे हैट. द ग्रे हैट हैकर who is in between the ethical hacker means good hacker and the cracker, that is the bad hacker. तो जो good hacker और bad hacker के बीच में है, in between, that is called a grey hat. He or she breaks into the computer system without authority with a view to identify weakness and reveal them to the system owner. ये break कर जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम को विदाउट अथॉरिटी, विदाउट एनी ऑथराइजेशन, और वहां पे ये आइडेंटिफाई करते हैं वीकनेसेस को और रिवील देम टू द सिस्टम ओनर, और सिस्टम ओनर को बताते हैं यानी कि आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क में यहां पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ साइबर क्राइम इज द साइबर स्टॉकिंग. तो साइबर स्टॉकिंग की अगर हम बात करें तो साइबर स्टॉकिंग भी एक टाइप का साइबर क्राइम है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो इसमें जो कंप्यूटर एज ए इज द यूज ऑफ द इंटरनेट टू कॉन्टेक्ट समवन और टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट देम, ओके, in a way that is annoying or frightening. Repeated use of the internet, email or related digital electronic communication device to annoy, alarm or threaten a specific individual or group of individuals. It means that यहां पर जो stalker होता है, it means that a person, unknown person or a known person to a targeted person. यानी कि आपका कोई जानने वाला या फिर एक अननोन पर्सन बार बार ईमेल के थ्रू या फिर मैसेजेस के थ्रू आपको अलार्म करेगा, थ्रेट करेगा या एनॉय करेगा. एनॉय मींस टीज करेगा, ओके, और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या किसी ग्रुप में या फिर इंडिविजुअली भी आपको बार बार मैसेजेस करेगा और फेक मैसेजेस करेगा, ओके. Cyber stalking sometimes referred to as internet stalking, e-stalking और online stalking. इसको हम online stalking, e-stalking या फिर internet stalking भी कहते हैं. इसमें मेनली होता क्या है कि एक known person या फिर unknown person भी कभी कभी आपके इंफॉर्मेशन,
आपके पर्सनल डेटा को कलेक्ट करके आपके अगर आपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपने कोई आईडी बना रखी है तो उसमें घुस करके कई बार आपके नेम से फेक मैसेजेस या फिर आपके बारे में कोई भी थ्रेट या फिर इस तरह के रूमर्स स्प्रेड करता है. दैट इज कॉल्ड ए साइबर स्टॉकिंग. And the person who do this cyber stalking is called stalkers. Next topic is the cyberbullying. So cyberbullying is a aggressive intentional act carried out by a group or an individual using electronic forms of contact repeatedly and over time against a victim who cannot easily defend him or herself. एक्चुअली देखा जाए तो ये साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, ये एक तरीके से सारे सिमिलर टाइप्स के ही साइबर क्राइम्स हैं, बट इसमें थोड़े थोड़े से माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जिसके कारण से हमने इनके नेम्स अलग अलग दिए हैं. साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग. तो अब हम देखते हैं साइबर बुलिंग क्या है. साइबर बुलिंग इज द यूज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स सच एज इंटरनेट तो रहेगा ही, एंड सेल फोन्स जो कि हम आजकल यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स, टू बुली अनदर पर्सन. बुली मीन्स कि मेक हिम फील एंग्री. ओके, रूमर्स क्रिएट करना, टीज करना, इंसल्ट करना, या फिर हैरेसमेंट करना, या फिर थ्रेट्स क्रिएट करना, या फिर लाइज, किसी के बारे में झूठी खबर फैलाना. ओके, सो दीज टाइप्स ऑफ एक्ट्स इज कॉल्ड इन द साइबर वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग. इसी को हम कहते हैं साइबर बुलिंग. सेंडिंग अब्यूजिव मैसेजेस, ओके, and emails and posting hurtful messages or images. okay, कोई गलत यूज करना किसी भी इमेज का. ओके, यूजिंग अ पर्सन पासवर्ड, किसी के बारे आपका पासवर्ड किसी को पता चल जाए और वो आपके अकाउंट से कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन निकाले या फिर आपके अकाउंट से छेड़छाड़ करे, एंड फेक मैसेजेस कॉल्स करे आपके पास थ्रू ऑनलाइन. Okay, so these types of acts comes under the cyberbullying. Next, very important is the phishing. ये बहुत ही आजकल कॉमन हो गया है ये जो अटैक है साइबर क्राइम, दैट इज द फिशिंग अटैक्स. फिशिंग इज अ साइबर क्राइम in which a target or targets are contacted by email, telephone or text message by someone posing a legitimate institution. Okay, legitimate institution and such as banks, to lure individual into providing confidential information such as personally identifiable information, banking and credit card details and passwords. तो इसमें क्या होता है फिशिंग में, फिशिंग इज अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे यूजर नेम्स हैं, पासवर्ड्स हैं, आपके ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, एंड समटाइम्स इनडायरेक्टली मनी ऑल्सो. तो इसमें क्या होता है कि इस तरह के फेक मेल्स और फेक मैसेजेस आते हैं फ्रॉम द लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन. ऐसा लगता है कि बैंक हमें खुद ही मेल कर रही है, खुद ही मैसेज कर रही है, और इट ट्राइज टू ट्रिक यूजर्स विद ऑफिशियल लुकिंग मैसेजेस. और लगता है कि कोई बैंक वाला ही हमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चाहता है या फिर हमारी बैंक के अकाउंट की डिटेल्स चाहता है. इस टाइप के हमारे पास मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं. दिस इज कॉल्ड अ फिशिंग अटैक. इसको हम कहते हैं फिशिंग ईमेल्स. तो सम फिशिंग ईमेल्स ऑल्सो कम मैलिशियस, ऑल्सो कंटेन मैलिशियस और अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट कैन ट्रैक योर एक्टिविटीज. हमारे एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं वो, और हमारे कंप्यूटर को स्लो भी कर देते हैं, या फिर हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स वो ऑब्टेन कर लेते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेते हैं थ्रू दिस फिशिंग अटैक. और हमें लगता है कि कोई बैंक से हमारे पास मैसेज आ रहा है या फिर मेल आ रहा है. द इंफॉर्मेशन इज देन यूज्ड टू एक्सेस इंपॉर्टेंट अकाउंट्स एंड कैन रिजल्ट इन आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फाइनेंशियल लॉस. और इस कारण से होता क्या है कि जो आइडेंटिटी लॉस होता है हमें, और हमारा जो इवन जो हमारे फाइनेंशियल लॉस भी कभी कभी हमें हो जाता है, यानी हमारी अकाउंट से हमारा मनी खाली हो जाता है, हमारा अकाउंट खाली हो जाता है. एंड नेक्स्ट साइबर क्राइम इज द डिनायल ऑफ सर्विस, दैट इज DOS. तो ये भी एक टाइप का साइबर क्राइम है, अ डिनायल ऑफ सर्विस. तो इसके साइंस क्या क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि हाउ वुड यू कंसीडर दैट यू आर
affect from a denial of service. First is degradation in network performance. जैसे आप नेट यूज कर रहे हैं तो नेट यूज करते करते कभी कभी नेटवर्क का सर्वर डाउन हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है और परफॉर्मेंस नेटवर्क की बहुत वीक हो जाती है, स्पेशली व्हेन अटेम्प्टेड टू ओपन फाइल्स स्टोर्ड ऑन द नेटवर्क और व्हेन एक्सेसिंग वेबसाइट्स. कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि नहीं ओपन होती हैं, वो नेटवर्क का सर्वर स्लो हो जाता है. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक अटैक होता है, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस. एंड स्पेसिफिक वेबसाइट अनअवेलेबल मीन्स कोई पर्टिकुलर साइट होती है वो ओपन ही नहीं होती है या कैन नॉट फाउंड शो होता है मैसेज. इनएबिलिटी टू एक्सेस एनी वेबसाइट, ऑल वेबसाइट्स आर इनएक्सेसिबल ऑन द नेटवर्क. और नेटवर्क एक तरीके से हैक हो जाता है और कोई वेबसाइट ही ओपन नहीं होती है. हाई वॉल्यूम ऑफ ईमेल स्पैम, और आपके ईमेल्स पर एक हायर यूजुअल वॉल्यूम ऑफ स्पैम ईमेल मींस फेक ईमेल्स और जो कि स्पैम मेल्स होती हैं वो बहुत सारी आने लगती हैं एक साथ, बहुत सारी. तो इससे समझ जाना चाहिए कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है हमारे नेटवर्क पे. ओके, मींस हमारे सिस्टम पे नहीं, हमारे नेटवर्क पे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है. तो इट इज डन बाय ए वेबसाइट विच इज फ्लडेड विद डेटा. ओके, ये वर्क कैसे करता है डिनायल ऑफ सर्विस, ये देखते हैं. तो ऑल ऑफ यू सी दैट दिस इज हैकर, दिस इज अटैकर्स. ये दो अटैकर्स हैं और ये एक्चुअल यूजर्स हैं. तो एक्चुअल यूजर्स भी नेट को यूज कर रहे हैं और जो अटैकर्स हैं वो भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं. तो और टारगेट सर्वर क्या है, मींस जो आप बैंक्स का सर्वर यूज कर रहे हैं या फिर कोई आप ऑनलाइन गेम ओपन कर रहे हैं या फिर आप गूगल यूज कर रहे हैं, गूगल की कहीं आपने फाइल सेव कर रखी है किसी सर्वर पर, तो नेट के थ्रू ही आप उसे एक्सेस करेंगे. और अटैकर्स की निगाह भी आपके सर्वर पे है और यहां जो यूजर्स हैं, जो एक्चुअल यूजर्स हैं, वो जब इंटरनेट के थ्रू अपने सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को टू फेच द डेटा, तो अटैकर्स भी एक रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर पर. इस कारण से क्या होगा कि वहां पर बहुत सारे रिक्वेस्ट एक साथ पहुंच जाएगी और सर्वर की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी. मींस जो वहां से रिस्पांस आता है सर्वर से, डेटा आता है हमारे पास, वो उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, हमारे वेबसाइट बहुत धीमी चलने लगेगी और हमारा नेटवर्क एक तरीके से हम कहेंगे कि स्लो हो गया है नेटवर्क. सो दिस इज द डिनायल ऑफ सर्विस. इसी तरह डिनायल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म होता है एंड इट कैन टेक आवर्स फॉर द कंपनी. कभी कभी इसे ठीक करने में और इसे ठीक होने में बहुत देर लग जाती है और द टारगेट यूजर टू रीगेन कंट्रोल बाय द टाइम इन मे हैव सफर्ड कंसिडरेबल फाइनेंशियल लॉस. और कई बार फाइनेंशियल लॉस भी हमें काफी हो जाता है क्योंकि नेटवर्क वर्क ही नहीं करता है, ना कोई सर्विस हम अवेल कर सकते हैं, चाहे वो बैंक की सर्विस हो या फिर और कोई फाइनेंशियल सर्विस हो. वी कांट अवेल दैट सर्विस और जिससे हमें फाइनेंशियल लॉस भी होता है और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज द साइबर टेररिज्म. तो साइबर टेररिज्म हम देखते हैं कि व्हाट इज साइबर टेररिज्म. So cyber, all of you know the cyber, that is the characteristic of the culture of computers, information technology and the virtual reality. Means आजकल criminals भी यानी terrorist भी यूज करने लगे हैं साइबर वर्ल्ड में, वो भी एक्टिव हो गए हैं, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे हैं, कंप्यूटर्स का यूज करने लगे हैं और टेररिज्म क्रिएट करते हैं. The unofficial or unauthorized use of violence and इंटिमिडेशन इन द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल एम्स. अपने पॉलिटिकल एम्स को पूरा करने के लिए वो साइबर टेररिज्म का यूज करते हैं. मींस नेटवर्क के थ्रू वो अनऑथराइज वायलेंस क्रिएट करते हैं थ्रू स्प्रेडिंग फेक रूमर्स, फेक मैसेजेस एंड फेक ईमेल्स और इवन डू इंट्रूजन इनटू द नेटवर्क. और नेशनल सिक्योरिटी से जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें आजकल साइबर टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है क्योंकि टेररिस्ट की निगाह अब हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर हमेशा बनी रहती है कि हाउ टू डैमेज द फाइल्स, हाउ टू डैमेज द डेटा. सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम. ओके, नेक्स्ट इज द आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन. सो
अब हम देखेंगे कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है. सो आइडेंटिटी थेफ्ट इज हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ विद सुटेबल मेजर्स. हम अपनी फाइल्स को, अपनी जो आइडेंटिटी है, जो हमारे पर्सनल डिटेल्स हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट रखेंगे विद सुटेबल मेजर्स. सो द डेफिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी थेफ्ट, फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट. सो आइडेंटिटी थेफ्ट is when your personal information is stolen by a criminal, okay, to gain access to your personal information such as your name, your address and your social security number, or you may say a social security number means your Aadhaar card details. Suppose your Aadhaar card details, your PAN card details, so your name and address means आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्रिमिनल्स की निगाह केवल उसी पर रहती है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे हम हैक करें और आपकी जो आइडेंटिटी है उसे हम यूज करके और आपके गेन कर सकें हम आपके स्टेटमेंट्स को, आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को, और हम एक तरीके से उसके थ्रू हम आपके बैंकिंग डिटेल्स तक पहुंच सकें. ओके, सो सेवरल टैक्टिक्स आर कॉमनली एम्प्लॉयड टू प्रोक्योर दिस इंफॉर्मेशन. बहुत तरीके से वो जो आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं वो किस किस तरह से कॉमनली होते हैं कि जैसे आपकी मेल्स के थ्रू, ओके, आपके जो स्टेटमेंट्स हैं या कोई पुराने बिल्स हैं उनके थ्रू, या फिर कोई क्रेडिट रिपोर्ट है आपकी, कोई कॉपी ऑफ योर क्रेडिट रिपोर्ट, या फिर कोई इंटरनेट पे आपने कोई पर्सनल डिटेल्स कहीं सेव कर रखे हैं तो उनको भी वो स्टील कर लेते हैं, मींस थेफ्ट कर लेते हैं, और इस कारण से आइडेंटिटी थेफ्ट परफॉर्म हो जाता है. हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट. अब हम देखते हैं कि हम इसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं. सो इसमें बहुत सारी टिप्स हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले कि नेवर थ्रो अवे क्रेडिट कार्ड और बैंक स्टेटमेंट इन यूजेबल फॉर्म. कभी भी जैसे हम जब एटीएम्स का यूज करते हैं या फिर हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो अपने जो हम क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स हैं या डेबिट कार्ड के स्टेटमेंट्स हैं उन्हें अनयूजुअल नहीं, हमें यूजेबल फॉर्म में कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए. ओके, उन्हें फाड़ देना चाहिए. ओके, और नेवर गिव अ क्रेडिट कार्ड नंबर ओवर द फोन. कभी भी हमें फोन पे या मैसेज के फॉर्म में किसी को अपने बैंक के डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड नंबर की डिटेल्स नहीं देने चाहिए. रिपोर्ट अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस टू बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज. अगर कोई अनऑथराइज आपके डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो बैंक्स को इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए. और बी कॉशियस ऑफ स्कैम्स रिक्वायरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन. और इस मामले में बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए कि कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं मांग रहा है इलीगली, ओके, या कोई बैंक से कोई फेक इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज तो नहीं कर रहा है, ओके, या फिर कोई मेल कर रहा है बैंक से आपकी इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि बैंकिंग डिटेल्स मांग रहा है. तो थोड़ा सा इसमें अवेयर रहना चाहिए और अपने भी जो भी क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग की डिटेल्स हैं उसे किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए. सो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम अपने आइडेंटिटी थेफ्ट को बचा सकते हैं और हैक होने से प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सेफ्टी. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? साइबर सेफ्टी आज इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक बहुत बड़ा इशू है कि साइबर सेफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों है. तो साइबर सेफ्टी इज अ फंडामेंटल प्रैक्टिस. एक ये फंडामेंटल प्रैक्टिस है. जैसे हम चाबी से अपने घर में ताला बंद करते हैं टू कीप आवर होम सेफ, अपने होम को सेफ करने के लिए हम ताला बंद करते हैं, उसी तरह से अपने कंप्यूटर में हम एक ताला लगा सकते हैं थ्रू साइबर सेफ्टी के थ्रू. बट ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम इस डेंजर से बच सकते हैं और इस प्रैक्टिस को हम फॉलो करके हम साइबर सेफ्टी कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा आजकल जरूरी है कि हमारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है, हमारा जो बहुत ही
कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रांसमिट होती है इंटरनेट के थ्रू, मींस हम शेयरिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की, ओके, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या कोई फाइनेंशियल डेटा हो या फिर डिफेंस से रिलेटेड कोई डेटा हो या फिर हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड कोई डेटा हो। तो इन डेटा को हम कैसे साइबर अटैक से बचा सकते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डेटा है, बहुत ही बिजनेस और पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा है, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारे जो एक तरीके से हमारे कंट्री के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड डेटा है। तो इन सारे डेटा को हमें कैसे सेव करना है, इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं दैट इज कॉल्ड साइबर सेफ्टी। तो एक तरीके से जैसे हम अपने होम को सेव करते हैं, अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स को सेव करते हैं, उसी तरह से हम जो ऑनलाइन हम अपना वर्क करते हैं उसे भी सेफली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द जनरल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स कंप्राइज द फॉलोइंग, और इसमें जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है अवेलेबिलिटी। ओके, मींस अवेलेबिलिटी मींस यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो हमारा डेटा है वो हर वक्त अवेलेबल हो इजिली, कोई सिक्योरिटी का इशू ना हो। ओके, इंटीग्रिटी हो, उसमें इंटीग्रिटी हो विच में इंक्लूड ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रिपुडिएशन, मींस यानी कि हमारे डेटा को कोई भी चेंज ना कर पाए, हमारी फाइल्स को कोई भी चेंज ना कर पाए, उसे कोई हैक ना कर पाए, हमेशा इंटीग्रिटी बना रहे हमारे, मतलब कि कलेक्टिवली यानी कि जितने भी हमारे नेटवर्क्स हैं वो एक दूसरे से सेफली कनेक्टेड हो और उसमें इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि कोई एक फाइल में अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं तो वो दूसरा कोई हैकर न जान पाए, या कोई फाइल हम शेयर कर रहे हैं तो भी वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहे और डेटा जो है वो कहीं बीच में करप्ट ना हो जाए। It is very important to protect the sensitive business and personal information as well as safeguard the national security and the personal data. So ये तीन बड़े objectives हैं, availability, integrity and confidentiality, AIC. Okay, and next is the viruses and types of viruses. So all of you aware about the viruses. Viruses के बारे में तो सबने ही सुना है। वो एक तो होता है बायोलॉजिकल वायरस जिससे हम बीमार पड़ते हैं, बट यहाँ जो हम वायरस की बात कर रहे हैं दैट इज द कंप्यूटर वायरस, साइबर वायरसेस। तो जैसे वायरसेस होते हैं जो कि ह्यूमंस को सिक कर देते हैं, ओके, बीमार कर देते हैं, उसी तरह से कुछ ऑनलाइन या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम मॉलवेयर कहते हैं, और ये प्रोग्राम्स भी इन द फॉर्म ऑफ वायरसेस होते हैं। ओके, वायरस के ही फॉर्म में होते हैं, इनको हम वायरस ही कहते हैं। बट ये होते क्या है, कोई वायरस नहीं होता है कि जैसे आजकल कोरोना का वायरस फैला हुआ है, उस टाइप का वायरस नहीं है, बट इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायरस दैट कैन हार्म योर कंप्यूटर, योर डिजिटल डेटा और इंफॉर्मेशन। सो दीज टाइप्स ऑफ वायरसेस आर इन द वर्चुअल वर्ल्ड। ये वर्चुअल वर्ल्ड के वायरसेस हैं जो कि एक प्रोग्राम के फॉर्म में होते हैं। ओके, तो वायरस की एक्टिविटीज मेनली देखें हम क्या होती हैं। मेनली वायरस की एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं कि आपके डेटा को ये डैमेज करते हैं और मेनली रेप्लिकेट करते हैं। इटसेल्फ रेप्लिकेट मींस अपनी कॉपी क्रिएट करते हैं। अपनी एक वायरस से बहुत सारे वायरस क्रिएट हो जाते हैं, मींस एक ही फाइल की बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं आपके सिस्टम में, और आपके जो मेमोरी है उसको ये पूरा कवर कर लेते हैं, और आपके जो मेमोरी स्पेस है वो पूरा एक तरीके से फुल हो जाता है और सिस्टम हैक हो जाता है, या फिर सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है, और एक तरीके से वायरस मैल फंक्शनिंग कॉज करता है इन ए नंबर ऑफ वेज फ्रॉम डिफरेंट वायरस टू वायरस। और कई बार एक फाइल से दूसरी फाइल में, तीसरी फाइल में, और ये अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, मेमोरी स्पेस को पूरा एक्वायर कर लेता है और कंप्यूटर के सिस्टम को स्लो कर देता है और डेटा को भी डैमेज कर देता है। यानी जो इंपॉर्टेंट आपके फोटोज हैं, वीडियोज हैं, या कोई इंपॉर्टेंट डेटा आपने सेव कर रखा है,
सपोज स्कूल का कोई डेटा है तो उसे सेव कर रखा है आपने अपने सिस्टम में, तो उस डेटा को भी बहुत ही डैमेज कर देता है या डिलीट कर देता है फाइल्स को। तो ऑन द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस द अफेक्टेड एरियाज आर नोन एज इन्फेक्टेड। और जब कोई फाइल या कोई सेक्शन जो है जब वायरस के अटैक में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस, वो बहुत ही इन्फेक्शियस हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। और कंप्यूटर वायरसेस आर टिनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर वायरसेस हैं क्या? एक तरीके से टिनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, टिनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं which are designed for spreading from one computer to another computer। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड करते हैं थ्रू एन इंटरफेस प्रोग्राम। ओके, देखने में तो लगता है कि ये एक प्रोग्राम है, बट इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस एंड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, ओके, एंड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। कई टाइप्स के वायरसेस हैं, मैक्रो वायरस, बूट इन्फेक्टर्स, ईमेल, ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिक वायरसेस। ओके, ऑल ऑफ यू सी दीज टाइप्स ऑफ वायरसेस इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में देखो बहुत सारे वायरसेस दिख रहे हैं। तो वायरसेस क्या हैं कि एक तरीके से ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कि डिजाइन किए गए हैं रेप्लिकेशन के लिए, और इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस, इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ files and softwares, you can spread it from one computer to another computer। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये बहुत ही इजीली नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड कर जाते हैं। अब इनकी एक्टिविटीज और हम देखते हैं क्या करते हैं ये। तो जो ये फॉलोइंग टाइप्स के आप कंप्यूटर वायरस देख रहे हो, डिफरेंट टाइप्स के, इसमें सबसे पहले आता है बूट सेक्टर वायरस, और यू मे सी बूट इन्फेक्टर्स। तो जो बूट सेक्टर वायरस होता है ये मेनली हार्ड डिस्क में होता है। दिस वायरस अफेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी और द हार्ड डिस्क, यानी जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है उस फ्लॉपी के हार्ड डिस्क में जहां पे सारा डेटा सेव होता है वहां पे ये वायरस होता है। और अ बूट सेक्टर वायरस इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर स्टोरेज सेक्टर वेयर स्टार्टअप फाइल्स आर फाउंड। जब हम ऑन करते हैं अपना कंप्यूटर तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है वो बूट सेक्टर में जहां पे सेव होता है, विंडोज की फाइल्स जहां सेव होती हैं बूट सेक्टर में, मेमोरी के उस पार्ट में जहां जिसे हम बूट सेक्टर कहते हैं। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले बूट सेक्टर से ही ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होता है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे सेव होता है वहां पे ये वायरस पहुंच जाता है और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज करता है, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं होता जल्दी, हमारा सिस्टम जल्दी ऑन नहीं होता है, और ये बहुत डिफिकल्टी से रिमूव होता है। इसीलिए हमें पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ता है और फिर से नया सिस्टम हमें अपने सिस्टम में डालना पड़ता है, कंप्यूटर में डालना पड़ता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं बूट सेक्टर वायरस के? डिस्क किलर एंड स्टोन वायरस, ओके, गिवन इन योर बुक, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये। नेक्स्ट इज द प्रोग्राम फाइल वायरस। ये जो वायरस होता है प्रोग्राम फाइल वायरस, ये एक तरीके से जो हमारी गेम्स होती हैं, हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं या फिर कोई एप्लीकेशन फाइल होती है, उसमें ये वायरस एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम फाइल। किसी फाइल के फॉर्म में रहता है, जैसे वर्ड की फाइल है या फिर कोई एप्लीकेशन फाइल है, ओके, मीन्स .exe या .com एक्सटेंशन के साथ ये वायरस रहता है। हमें लगता है कि ये कोई सेटअप है या कोई फाइल है, और जिसे जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं, ओपन करते हैं या फिर उसे हम एक्टिवेट करते हैं तो ये वायरस तुरंत रन कर जाता है डायरेक्टली और एक्टिवेट हो जाता है और फिर डैमेज करता है हमारी फाइल्स को। और इसका जो मेनली जो एग्जांपल्स हैं प्रोग्राम फाइल वायरसेस के, दैट इज द संडे एंड कैस्केड, ओके। नेक्स्ट इज द मेमोरी रेजिडेंट वायरस, ओके। मेमोरी रेजिडेंट वायरस, इट इज अ परमानेंट वायरस विच रिजाइड्स इन द रैम। जो हमारे कंप्यूटर की रैम मेमोरी होती है, दो मेमोरी होती है, एक रैम और एक रोम। तो हमारे रैम में ये वायरस आता है एंड इंटरप्ट ऑल द ऑपरेशंस विच आर एग्जीक्यूटेड बाय द सिस्टम। जो करेंटली जैसे हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, जितने भी करेंटली हम वर्क करते रहते हैं उसको ये अफेक्ट करता है ये वायरस, एंड इट रिजाइड्स इन द रैम and affecting other files that are open file
जो भी फाइल्स हम ओपन किए रहते हैं उन फाइल्स को ये अटैक करता है। इसके एग्जांपल्स हैं CMJ एंड Randex एंड Maven। नेक्स्ट इज द ओवरराइट वायरस। Overwrite virus. This is the type of virus which deletes the information contained in a file that they infect, leaving them partially or completely useless once they are infected. Overwrite means, जैसा इसका नेम ही है overwrite, means फाइल्स को overwrite कर देता है। means यानी कि जो फाइल में ये घुसता है उसे एक तरीके से पूरा डैमेज कर देता है, इंफॉर्मेशन एकदम डिलीट कर देता है, या फिर पार्शियली या कंप्लीटली आधी इंफॉर्मेशन या फिर पूरी इंफॉर्मेशन डिलीट कर देता है, और वो यूजलेस हो जाती हैं, वो फाइल्स यूजलेस हो जाती हैं। और वंस द कंप्यूटर दे रिप्लेस ऑल द फाइल, वंस इन अ कंप्यूटर दे रिप्लेस ऑल द फाइल्स कंटेंट्स बट द फाइल साइज डज नॉट चेंज। हमें लगेगा कि फाइल का साइज तो चेंज हुआ नहीं है, यानी कि डेटा सेव है, बट डेटा पूरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है। दैट इज द वर्क ऑफ द ओवरराइट वायरस, एंड द एग्जांपल्स ऑफ ओवरराइट वायरस इज द रीबूट, राइवल एक्सेट्रा। ओके, next is the multipartite virus or polypartite virus. Multipartite virus or polypartite virus is a type of virus that infects and spreads in multiple ways. ये एक तरीके से नहीं, ये कई तरीके से स्प्रेड होता है। इट में अटैच इटसेल्फ टू द बूट सेक्टर, टू द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आर बोथ। ये बूट सेक्टर और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ, जो अभी हम पढ़ रहे थे प्रोग्राम फाइल वायरस, ये बूट सेक्टर और प्रोग्राम फाइल दोनों को एक साथ अटैक करता है, और इट इज अ हाइब्रिड ऑफ बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम फाइल वायरस। ये दोनों का मिक्सचर होता है, और ये बहुत ज्यादा ही हमारे सिस्टम को डैमेज एक साथ करता है और मल्टीपल वेज में ये स्प्रेड करता है। इसके एग्जांपल्स हैं एंथ्रैक्स और टेक्यूला। ओके, टेक्यूला एंड एंथ्रैक्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द मल्टीपार्टाइट वायरस और पॉलीपार्टाइट वायरस। एंड एट लास्ट इज द मैक्रोवायरसेस। Macroviruses. So macroviruses are the type of virus that infects data files such as Word document की files हो, Excel spreadsheets की files हो, mainly उनको damage करता है ये। They are very common and can be difficult and expensive to repair. ये बहुत ही common है और बहुत ही difficult है कि इसे हम किसी भी antivirus के through इसे हम कहीं delete कर पाएं या repair कर पाएं। So macroviruses are written using macro programming languages. Macro programming जो हमारी languages हैं, macro programming languages में ये लिखे जाते हैं। वायरस मीन्स एक तरीके से ये प्रोग्राम्स ही होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं to allow users to automate task within an application. Okay, तो हमारी जो एप्लीकेशन टास्क है, जैसे हम एक्सेल पे वर्क करते हैं, MS वर्ड पे वर्क करते हैं, ये मेनली उस पे टारगेट करते हैं। और दे आर नाउ थाउजेंड्स इन सर्कुलेशन, और फिर ये इतनी तेजी से स्प्रेड होते हैं कि हमारी जितनी भी फाइल्स हैं MS वर्ड की या फिर हमारी एक्सेल की, उनको ये डैमेज करते हैं। इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल्स है वो है मेलिसा एंड मेलिसा A एंड रिलैक्स are the examples of the macroviruses. Now next is the worms and Trojan horse. So these are also the types of viruses, that is the worms and Trojan horse. So all of you see the difference between a worm and a virus on your screen. Virus और worm के बीच का जो difference है कि कंप्यूटर सिस्टम को कैसे इन्फेक्ट करता है। ओके, हाउ डज इट इन्फेक्ट फाइल्स, फाइल्स को कैसे इन्फेक्ट करता है। Who speed is more, किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड कम है, वो भी दे रखा है। ये वर्म और वायरस के बीच का डिफरेंस है। सो ऑल ऑफ यू सी दिस फिगर इन दिस फिगर। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रोजन हॉर्स वायरस। तो ट्रोजन हॉर्स जो वायरस है, इट इज अ मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम। ये देखने में तो लगता है कि एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है और ये काम का प्रोग्राम है, मतलब अपेरेंटली शो ऐसे होता है कि ये कोई
यूजफुल प्रोग्राम है, बट इट इज मैलिशियस और हार्मफुल कोड is contained inside apparently harmless programming or data in such a way that it can get control and cause damage. Means कि ऐसा प्रोग्राम जो कि मिस रिप्रेजेंट करता है, अपने को दिखाता ऐसे है कि मैं बहुत यूजफुल हूं, बट इट इज मैलिशियस एंड इट इज डेंजरस जस्ट टू कन्विंस अ विक्टिम टू इंस्टॉल इट. तो लगता ऐसे है कि ट्रोजन हॉर्स कि आपको लगेगा कि ये कोई सॉफ्टवेयर है जिसे हमें इंस्टॉल करना है, बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है एंड यू हैव टू इंस्टॉल इट. ओके, जैसे इस डायग्राम में देखो एक हॉर्स दिख रहा है, तो यहां जो डायग्राम 1 लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, दिस इज डायग्राम 1. ये डायग्राम 1 जो है ये एक तरीके से लगेगा कि बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और जैसे हम इस डायग्राम पे क्लिक करेंगे तो ये एक तरीके से वायरस के फॉर्म में होगा और हमारे सिस्टम में एंटर कर जाएगा. और द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ट्रोजन हॉर्स स्टोरी. और एक ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी थी जो कि एक मिथोलॉजी है, एक टाइप की, एक तरीके से इमेजिनेशन है, और उसी के नाम पर हमने इस वायरस का नेम रखा है ट्रोजन हॉर्स. So in Trojan horse code is hidden in a program like a game or a spreadsheet which looks safe for running but has hidden side effects. एक गेम के फॉर्म में या फिर स्प्रेडशीट के फॉर्म में ये वायरस रहता है और लगता है कि ये हमें इसे इंस्टॉल करना चाहिए, बट इट लुक्स सेफ फॉर रनिंग बट इट इज डेंजरस. ओके, बट इट डज नॉट रेप्लिकेट और स्प्रेड लाइक ए वायरस. लेकिन ये रेप्लिकेट नहीं करता है, वायरस रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है, बट ट्रोजन हॉर्स नेवर रेप्लिकेट, ये कभी भी रेप्लिकेट नहीं करता है. एंड ये कुछ सेफ्टी टिप्स हैं साइबर क्राइम से हम कैसे बच सकते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करके, फायरवॉल्स का यूज करके, बैकअप मेंटेन करके. ओके, और अपना नेम, एड्रेस या फिर बैंकिंग डिटेल्स हम किसी अपने स्ट्रेंजर्स को ना दें. ओके, और हमेशा सॉफ्टवेयर, हमेशा पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज ना करें. ओके, और नेट बहुत ही सेफली यूज करें. और उसके बाद साइबर एथिक्स और साइबर लॉज की बात करते हैं. तो साइबर एथिक्स और साइबर लॉज ये एक तरीके से मॉरल रूल्स हैं. साइबर एथिक्स क्या है? इट इज अ गाइडलाइन टू द कंप्यूटर यूजर्स. कंप्यूटर यूजर्स के लिए एक गाइडलाइन है एंड इट इज अ यूनिवर्सल, कैन बी अप्लाइड एनीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. और साइबर एथिक्स को हम अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में. इट इज इमोरल इफ साइबर एथिक्स आर नॉट फॉलोड. मीन्स it examines the impact that cyber technology has for our social, legal and moral systems. यानी कि जो कोई भी इंटरनेट यूज कर रहा है या फिर साइबर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, उसे कुछ मॉरल, कुछ लीगल या फिर कुछ सोशल इश्यूज का ध्यान रखना होता है. यानी कि वो कोई भी फेक मैसेजेस ना फैलाए या सोसाइटी में बहुत ही या लीगली वर्क करे, सिस्टम के साथ मॉरली वर्क करे, कोई भी क्राइम इस तरह का कंडक्ट ना करे इंटरनेट के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू. तो एक तरीके से एक सोशल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, एक मॉरल सोशल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड द साइबर एथिक्स. यानी कि मॉरल वैल्यूज, मॉरल गाइडलाइंस हैं जो कि कंप्यूटर यूजर को ये बताती हैं कि आप कैसे एक यूजर, एक तरीके से इंटरनेट फ्रेंडली यूजर होकर के वर्क कर सकते हैं और कोई भी क्रिमिनल एक्ट को प्रिवेंट करता है ये साइबर एथिक्स. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज क्रिएट किए हैं कि इस तरह के जो साइबर क्राइम्स हैं या फिर इंटरनेट लॉज भी हम कहते हैं साइबर लॉज को, तो ये जो रूल्स हैं, जो लॉ हैं, ये कंप्यूटर यूजर को एक तरीके से बाइंड करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि वो इस तरह का कोई क्राइम कंडक्ट ना करे. एंड साइबर लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड साइबर लॉ और इंटरनेट लॉज एंड इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री. अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग लॉज हैं. इंडिया के लिए कुछ अलग लॉज हैं और यूएस के लिए कुछ अलग लॉज हैं. इट इज अ क्राइम इफ साइबर लॉज आर नॉट फॉलोड. और अगर आप उन लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, साइबर लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, देन इट इज अ क्राइम. ओके, तो
अगर आप उन लॉज को फॉलो नहीं करते तो ये एक क्राइम है. और डिफरेंस is given in your book between cyber law and cyber ethics. cyber ethics और cyber law के बीच में डिफरेंस बुक में दिया हुआ है. So students, read the chapter carefully and see this video. It is very important. And this is the antivirus, about antivirus. Okay, so antivirus is a software. हम अपने सिस्टम में antivirus भी इंस्टॉल करते हैं for a safe and to protect our files and to save our computer from viruses. Okay, so these are all the topics which we discuss in this chapter. If you have any confusion regarding any topic and your syllabus of half yearly exam is completed now, and all of you complete your project and send your pics of the project on my WhatsApp number, and you can contact on my WhatsApp number also for any problem. Okay, so thanks for watching my videos and best of luck for your half yearly examination.